Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 400 MCQs of romantic periods. Dear friends, this is the second part. Uh, Before this, I have completed question number 1 to 4 in part 1. Dear friends, these are some important question फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। किसके बाद जो है वो वर्ड्सवर्थ थे जो वो पोएट लॉरेट बने इंग्लैंड के। ऑप्शन ए रॉबर्ट साउदी, ऑप्शन ए रॉबर्ट साउदी, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी वॉल्टर स्कॉट एंड ऑप्शन डी एस.टी. कॉलरेज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट साउदी। Robert Saudi is the correct answer. Robert Saudi is the correct answer of this question. Robert Saudi, option A is the correct answer. Now second question is, man is born free but also he is everywhere in chains. Who said this? किसने ये कहा है कि आदमी का जो जन्म हुआ है स्वतंत्र रूप से हुआ है लेकिन वो हर जगह चैन से बंधा हुआ है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सोक्रेट्स, ऑप्शन डी होब्स एंड ऑप्शन डी रोशो। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी रोशो इज द करेक्ट आंसर। Rousseau said that man is born free but he is in chains. क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए revend to stick in his coat. Browning wrote these lines about Wordsworth, referring to a handful of silver, meaning thereby. Option A, the royalty paid to him by his publisher. Option B, a pension granted to him by the British government. Option C, a gift given to him by the French revolutionaries. And option D, an endowment given to him by a well-wisher. So which one is the correct answer? The correct answer is a pension. Yes, option B, a pension granted to him by the British government. Question number 8 है, who wrote the ode to France under the influence of the French Revolution? क्वेश्चन नंबर 8 है, who wrote the ode to France? किसने लिखा है ode to France under the influence of French Revolution? ऑप्शन ए एस.टी. कॉलरेज, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी पी.वी. शेली एंड ऑप्शन डी विलियम ब्लेक। सो हु रोट दिस? एस.टी. Coleridge. S.T. Coleridge. Option A is the correct answer. S.T. Coleridge. S.T. Coleridge is the correct answer. Question number 9. Wordsworth preface to the lyrical ballads was. Wordsworth preface to the lyrical ballads was. Option A, separate supplement to the lyrical ballads. Option B, a rejoinder to the Coleridge Biographia Literaria. Option C, the preface to the first edition of the lyrical ballads. And option D, the preface to the second edition of the lyrical ballads. तो ऑप्शन डी, द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
Now, question number 10. The beginning of the Romantic movement is marked by. The beginning of the Romantic movement is marked by option A. The Rime of the Ancient Mariner. Option B. Tintern Abbey. Option C. Lyrical Ballads. And option D. Kubla Khan. बिगनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इज मार्क्ड बाय, किसके द्वारा बिगनिंग मानी गई रोमांटिक मूवमेंट की? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिरिकल बैलेड्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. हु इज नोन एज द प्रीस्ट ऑफ नेचर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किसको प्रीस्ट ऑफ नेचर, पुजारी कहा जाता था प्रकृति का? ऑप्शन ए एस.टी. कॉलरेज. ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन सी लॉर्ड बायरन. एंड ऑप्शन डी पी.बी. शेली. सो ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Wordsworth was accused of being the lost leader by. वर्ड्सवर्थ वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाय. किसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था लॉस्ट लीडर का? ऑप्शन ए सर वॉल्टर स्कॉट. ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड. ऑप्शन सी लॉर्ड टेनिसन. एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउनिंग. सो ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. वर्ड्सवर्थ सिस्टर वॉज. कौन थी इनमें से वर्ड्सवर्थ की सिस्टर? ऑप्शन ए डोरोथी. ऑप्शन बी मैरी. ऑप्शन सी लिडी. ऑप्शन डी एनी. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ सिस्टर वाज ऑप्शन ए डोरोथी. नाउ very important question, mostly asked in the exam. If winter comes, can spring be far behind? This is the concluding line of. If winter comes, can spring be far behind? क्या यदि विंटर आती है तो क्या स्प्रिंग पीछे रह जाएगी? दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ ऑप्शन ए द क्लाउड. ऑप्शन बी द eve of Saint Agnes. Option C Ode to the West Wind. And option D Prometheus Unbound. प्रोमीथियस पी.बी. शेली की बुक से है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओड टू द वेस्ट विंड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी ओड टू द वेस्ट विंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Poets are the unacknowledged legislators of the world. Poets are the unacknowledged legislator of the world. Who said this? Option A William Wordsworth. Option B P.B. Shelley. Option C Thomas Carlyle. And option D John Keats. तो किसने कहा है कि poets are unacknowledged legislator of the world? P.B. Shelley. Option B is the correct answer. A young friend of Wordsworth left his legacy of dash to him. वर्ड्सवर्थ के एक यंग फ्रेंड थे, उन्होंने लेगेसी छोड़ी रखी थी. ऑप्शन ए 900 पाउंड्स. ऑप्शन बी 1200 पाउंड्स. ऑप्शन सी 600 पाउंड्स. एंड ऑप्शन डी 400 पाउंड्स. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए 900 पाउंड्स. डियर फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यदि केवल आप इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से सुनते हैं तो आप इनको आसानी से अपने माइंड में बहुत दिनों के लिए याद रख सकते हैं. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है. इन 1802 वर्ड्सवर्थ गॉट मैरिड टू हिज कजिन. जो वर्ड्सवर्थ थे इन्होंने 1802 में वर्ड्सवर्थ ने मैरी की थी, शादी की थी. किससे? मैरी पेरी. ऑप्शन बी मैरी बोल्स्टनर्स. ऑप्शन सी मैरी गॉडविन. एंड ऑप्शन डी मैरी हचिंसन. सो ऑप्शन डी मैरी हचिंसन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी मैरी हचिंसन इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
The preface to the 1800 edition of Lyrical Ballads contained Wordsworth attack on the, फिर से सुनिए, द प्रीफेस टू द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स कंटेन वर्ड्सवर्थ अटैक ऑन द, ऑप्शन ए क्लासिज्म, ऑप्शन बी रेशनलिज्म ऑफ विलियम गॉडविन, ऑप्शन सी द न्यू क्लासिकल versification, and option D gaudiness and inane phraseology. So option D is the correct answer, gaudiness. गॉड बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ें इनको पसंद नहीं थी, इस पर अटैक किया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है लिरिकल बैलेड्स ओपन विथ, जो लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ के जो हैं, तो विलियम वर्ड्स लिरिकल बैलेड्स ओपन विथ, ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एवी, ऑप्शन बी कॉलरेज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, एंड ऑप्शन डी Coleridge Biographia Literaria. So which one is the correct answer? Lyrical ballads open with Coleridge rhyme of the ancient mariner. Option B is the correct answer. Now question number 20, the year 1719 has been taken to be the year beginning of the romantic movement because 1798 को जो था वो इसके बिगिनिंग कहा गया था रोमांटिक मूवमेंट का। क्यों? क्योंकि इट वाज द ईयर ऑफ द वर्ड्सवर्थ, क्योंकि यह वर्ड्सवर्थ के जन्म का ईयर था। इट वाज द ईयर इन विच जेम्स थॉमस सीजन्स वाज पब्लिश्ड, क्योंकि इसमें इनका जो है जेम्स थॉमस का सीजन पब्लिश्ड हुआ था, सीजन्स पब्लिश्ड। ऑप्शन सी इट वाज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड, एंड ऑप्शन डी इट वाज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड द पोएट laureates. So which one is the correct answer? The correct answer is option C. It was the year in which Wordsworth lyrical ballads were published. So option C is the correct answer. Option C, it was the year in which Wordsworth lyrical ballads were published. Now dear friend, next question number 21. Though Keats was the least affected by the फ्रेंच रिवॉल्यूशन डायरेक्टली, जो कीट थे वो बहुत ही कम अफेक्टेड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। विच ऑफ हिज वर्क्स हैज़ द रिवॉल्यूशनरी इम्प्लीकेशन, लेकिन इनके किस वर्क में रिवॉल्यूशनरी इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए हाइपेरियन, ऑप्शन बी इंडीमियन, ऑप्शन सी ओड टू ऑटम, एंड ऑप्शन डी ओड टू नाइटिंगेल। The correct answer is Hyperion. Option A is the correct answer. Now dear friend, question number 22. The prelude by Wordsworth is a, जो prelude है वर्ड्सवर्थ की वो क्या है? A philosophical poem, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल पोएम, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, एंड ऑप्शन डी हिस्टोरिकल पोएम। सो सी, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम is about writing life history by himself, so it is autobiographical poem. Now question number 23. Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he the still sad music humanity? Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? Option A the boyish stage, option B the adult stage, option C the final stage, and option D all the above. So option C the final stage is the correct answer. Now question number 24. We are led asleep in body and become a living soul. In which of the Wordsworth poem does this
लाइन अकर, किस वर्क में वर्ड्सवर्थ के ये लाइन अकर होती है कि वी आर लेड asleep in body and become a living soul. Option A, the excursion. Option B, the prelude. Option C, the rainbow. And option D, the Tintern Abbey. So which one is the correct answer? Option D, Tintern or Abbey is the correct answer of this question. Tintern Abbey. In Tintern Abbey, this line is occur: we are led asleep in body and become a living soul. Question number 25. In which of the poems Shelley denounced all the forces of tyranny and oppression represented by king and priest? इन विच पोएम ऑफ शैली, किस पोएम शैली ने किस पोएम में ये टायरनी यानी अत्याचार और दबाव जो है उनके बारे में बताया है? ऑप्शन ए क्वीन मैब, ऑप्शन बी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ऑप्शन सी एडोनिस एंड ऑप्शन डी एलेस्टर. So which one is the correct answer of 25? The revolt of Islam. The revolt of Islam. William Wordsworth wrote a sonnet on. विलियम वर्ड्स ने एक सोनेट लिखा है किसके ऊपर? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी पोप, ऑप्शन सी बेन जॉनसन एंड ऑप्शन डी स्पेंसर. सो ऑप्शन ए मिल्टन इज द करेक्ट आंसर. डियर फ्रेंड, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द पार्ट सेकंड. यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27. 3 years she grew is the subtitle of. 3 years she grew is the subtitle of. 3 years she grew किसका सबटाइटल है? ऑप्शन ए द डैफोडिल, ऑप्शन बी द रेनबो एंड ऑप्शन सी द एजुकेशन ऑफ नेचर एंड ऑप्शन डी द थोर्न. सो ऑप्शन सी एजुकेशन ऑफ नेचर का जो सबटाइटल है 3 years she grew. And last question of this video, dear friends. One impulse of Bernal Wood may teach you more of a man of moral evil and of good than all the sages can. These lines have been composed by option A P.B. Shelley, option B William Wordsworth, option C Robert Southey and option D John Keats. So option B is the correct answer. Thank you for watching this video.